हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रेस क्लासेस। आज हम +1 के लिए आगे कर रहे हैं। इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन इन +1, लेक्चर नंबर 2, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर up to 3 done. Today question 4 and exercise 11.2, question 1 to 4, and distance formula we have to use. Okay, डायगोनल से ही बन जाएगा। ये डायगोनल मैंने प्रूव किया था, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D, बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 1 point and b x2 y2 z2. Okay, so this distance formula, square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. This formula we have to use in the exercise 11.2, distance between 2 points in the space, these 2 points, and space कैसा है 3D. Okay, introduction yesterday done and exercise 11.1, question 1 to 3 done. Today question number 4. Today lecture number 2. What is question 4? Question 4 is the x-axis and y-axis. First part, the x-axis and y-axis x-axis and y-axis taken together x and y को together taken, तो determine a plane known as fill in the blank है. Determine a plane is known as fill in the blank. ओके, तो क्या है ये एक्स वाई प्लेन, क्या कहेंगे इसे एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सेकेंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, the coordinate of a point in
इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ब्लैंक। उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा 0 यहाँ पर। आई टोल्ड दी ओके इन द इंट्रोडक्शन। थर्ड पार्ट, बट दिस क्वेश्चन ओनली फॉर रिमाइंडिंग दैट coordinate planes divide the coordinate plane coordinate planes divide the planes divide the space divide the space into dash octant octants। हाँ जी, कितने में स्पेस कितने डिवाइड हुआ, कितने ऑक्टेंट्स में? 8। ओके, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है। ये ब्लैंक हो गया, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लेन एक्स वाई प्लेन, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली वाई जेड से वाई जेड एंड एक्स एंड जेड एक्सिस से एक्स जेड। आई टोल्ड यू ओके। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 11.2 ओके। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1। Exercise now 11.2. What is question 1? Find the distance between the following pairs of points. Find the distance between the following pairs of points. Okay, first part 2, 3, 5 and 4, 3, 1. Use this formula. Okay, using formula, distance formula, this what will come? Distance between the, let this point A, let this point B, तो ए बी है ना, डिस्टेंस स्क्वायर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर।
Okay, then simplify. 4 minus 2, 2 whole square, 4. 3 minus 3, 0, plus 0 finish, plus 1 minus 5 minus 4 whole square, 16. Then 20. So 2 2 ja 4, 5 ja 20. 2 root 5. Okay, this answer. ये डिस्टेंस इतने यूनिट हो गया. ठीक है, डन. सिमिलरली अदर पार्ट यू कैन डू. Okay, one part more I am doing, fourth part other you can do. Similarly, एक पार्ट और कर देते हैं. फोर्थ पार्ट 2 1 3 2 1 3 and minus 2 1 3. These 2 points. So distance, let this A, this B, then AB distance between these 2 points, same formula, x2 minus x1 whole square. So minus 2 minus 2 minus 4 whole square, minus 2 minus 2. Okay, then 1 minus 1, 0 whole square, 0. 3 minus 3, 0. Done. Then 16, then 4 unit. Done. So similarly you can do. Okay. Now next question, question number 2. Other part you can do similarly, simple distance formula. Now question number 2. What is question 2? So that the points this are collinear. So that the points minus 2 3 5 comma 1 2 3 and third point 7 0 minus 1 are collinear. This is the question number 2. Solution: collinear if condition, if AB plus BC is equal to AC, then A comma B comma C are collinear. ये कंडीशन हम जानते हैं. ओके, यूजिंग दिस, तो डिस्टेंस, लेट दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी. ओके, देन सॉल्यूशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी डिस्टेंस between 2 points, this formula using,
x2 minus x1 whole square, 1 minus minus 2, then 1 plus 2, 1 plus 2 whole square, okay, plus y2 minus y1, 2 minus 3, 2 minus 3 whole square plus 3 minus 5, z2 minus z1 whole square, square root. Using this formula, then AB equal 1 plus 2, 3 whole square, 9, 2 minus 3, minus 1 whole square, 1, 3 minus 5, minus 2, minus 2 whole square, 4, 4, 1, 5, 5 plus 9, 14, so root 14. BC, similarly, same formula, B point, this C point 70 minus 1. So BC, y2, x2 minus x1, 7 minus 1, 6 whole square, 36, 0 minus 2 whole square, so minus 2 whole square plus 4, then minus 1 minus 3 whole square, so minus 4 whole square, then 16. Then this 16 plus 4, 20, 20 plus 36, 56. 56 means 2 root 14. 2 to the 4, 4 into 14, 56. Then 2 root 14. Then AC distance, same distance formula. Point A minus 2, 3, 5 and C A 0, 7 minus 1. So 7 minus minus 2, 9 whole square plus 0 minus 3 whole square minus 3 whole square, then 3 is a 9, okay, and minus 1 minus 5 minus 6 whole square, 36. Then this 9 9 is 81, 81 plus 9, 90, 90 plus 36, 126. Square root 126. Okay. 14 9 ja 126. Okay. Then this is 3 root 14. Then 3 root 14. This is equal to 3 root 14. Now using these all three distances, check this condition. We know as here this plus this, AB plus BC, as AB plus BC is equal to AC, because this true, root 14 plus 2 root 14 is equal to 3 root 14. Okay, because this. Thus A, B and C are collinear.
आर कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड. ओके, कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना था. डन, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, वेरीफाई द फॉलोइंग. अब फॉलोइंग क्या वेरीफाई करना? फर्स्ट पार्ट, पॉइंट ए 0, 7 - 10, B 1, 6 - 6 and C 4, 9 - 6 are the vertices of an isosceles triangle. अब isosceles triangle का मीनिंग क्या हो गया कि हम AB डिस्टेंस निकाल लें, BC निकाल लें और AC निकाल लें. तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी, एनी टू इक्वल, देन ये क्या बन जाएगा? एनी टू साइड इक्वल, देन आइसोसेलेस. ये मैंने कंडीशन लिखा. ओके, सेकेंड पार्ट के लिए A 0, 7, 10, B -1, 6, 6 and C -4, 9, 6 are the vertices of a right angle triangle. तो इसमें हमने AB फाइंड कर लेना है, BC फाइंड कर लेना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, एंड AC तीनों साइड आ जाएंगे. फिर पाइथागोरस थ्योरम है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड. तो जो भी उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी वह लार्जेस्ट साइड होगी, तो उसका ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा. लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू. मे बी लार्जेस्ट AC, मे बी लार्जेस्ट BC, मे बी लार्जेस्ट AB. So you can check that after find the distance. Now third, if AB equal to CD equal to and BC equal to AD, यानी opposite sides are equal. साइड निकाल लेंगे, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D गिवन. तो AB डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, BC भी निकाल लेंगे, CD भी निकाल लेंगे एंड AD भी. तो चारों डिस्टेंस निकालकर उनमें ऑपोजिट साइड AB CD इक्वल आएंगी, BC एंड AD इक्वल ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी. देन तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. ये कंडीशन आपको याद करनी, मैंने कंडीशन लिख दिया, सिंपल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो गया, एक पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गई यहाँ पर. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. क्लियर. तो कौन सा क्वेश्चन किया जाए इनमें से? एक पार्ट में कर रहा हूं, सेकंड पार्ट कर देता हूं. ओके बेटा, ठीक है. सेकंड पार्ट आई एम डूइंग. सेकंड पार्ट इज दिस. तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं AB. सॉल्यूशन किसका? सेकंड पार्ट. AB डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा, A यह है, B यह है. ओके, तो x2 - x1, तो -1 - 0, तो -1 होल स्क्वायर 1 प्लस 6 - 7 y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 6 - 7 -1 होल स्क्वायर देन 1 प्लस 6 - 10 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर 16. Then this is equal to 16 and 2 18, root 18, 2 9 जा 18, तो 3 √2. डन. पहली साइड. दूसरी BC निकाल लो. ओके, BC, B एंड C पॉइंट लेकर x2 - x1, -4 -1 तो +1, -4 + 1 -3 होल स्क्वायर 9 प्लस y2 - y1. ओके, तो 9 - 6 3 होल स्क्वायर 9 प्लस 6 - 6 0. Then this is also not 18 and 3 √2. थर्ड साइड AC निकाल लो. AC, A पॉइंट एंड C पॉइंट, तो -4 - 0 होल स्क्वायर देन 16
Okay, then y2 minus y1. So 9 minus 7, 2 whole square, then 4 plus 6 minus 10 whole square. So minus 4 whole square, 16. 16 plus 16, 32. 32 plus 4, 36. 36 means square root 36 means 6. तो ये 3 साइड आ गई. ओके, देखो यहां पर क्या बनता है. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड, 3 स्क्वायर 9, 9 टू 18 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 प्लस 18 36 एंड 6 स्क्वायर 36. तो यहां पर देखो क्या आ गया, एज चेक किया, एज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. बिकॉज चेक किया हमने यहां, ये मैं रब कर देता हूं कंडीशंस, आई टोल्ड यू. ठीक है, नाउ दे बिकॉज दिस 3 रूट 2 होल स्क्वायर, 3 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 होल स्क्वायर is equal to 6 whole square. True. Because ये true है, so this true. Okay, चेक किया, ये बन गया 9 to 18 plus 18. 18 plus 18 is equal to 36. True. 36 is equal to 36. Okay, ये true है. So hence these are the vertices of these are the vertices of right angle triangle. Vertices of a right angle triangle. Right angle triangle. Hence proved. Hence verified. Hence verified. ये मैं वेरीफाई करना था. ओके, वेरीफाई दी. तो लाइक दिस यू कैन डू अदर्स आल्सो, आइसोसेलेस आल्सो एंड पैरेललोग्राम आल्सो you can do. Okay, now this next question number 4 we can do. Okay, see question number 4. Find the equation of the set of points which are equidistant from the points this and this. Equidistant from these 2 points, any point. Let P x comma y comma z is equidistant from A, from 2 points, set of points, equation of the set of points. तो A
1 2 3 1 2 3 and 3 2 1 B 3 2 1। तो लेट एक पॉइंट है ये जनरल पॉइंट, ये कोई 2 पॉइंट ए एंड बी है, इनसे इक्विडिस्टेंस पर है। तो हमें सेट ऑफ पॉइंट्स मींस लोकस फाइंड करना। सेट ऑफ पॉइंट्स मींस लोकस यानी इक्वेशन। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इक्वल टू बी पी इन फिगर आल्सो हमने शो किया इन फिगर। ओके, फिगर ये बनाया हमने। ओके, ये डिस्टेंस इक्वल है ए पी एंड बी, कहीं पी है। ओके, इज इक्वल डिस्टेंस, ये लेट कर लिया हमने। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए पी डिस्टेंस एक्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 2 होल स्क्वायर ओके बेटा, एंड प्लस z माइनस z2 होल स्क्वायर। दिस इज AP इक्वल this B point, this BP। ओके, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 होल स्क्वायर। This now according to question this equidistance, so ये simplify only square root cancel, single term both side, तो whole square both side root cancel, then x minus 1 whole square a square plus b square minus 2ab whole square open, this a square plus b square and minus 2ab plus this z minus 3 whole square, z square plus 9 minus 6z is equal, this right hand side also whole square, a square plus b square and minus 6x plus y minus 2 whole square, y square plus 4 minus 4y plus z minus 1 whole square, z square plus 1 minus 2z. Now simplify. Okay, plus 9 right hand left hand cancel. Okay, plus 4 cancel, plus 1 and plus 1 cancel. Now x square cancel, y square cancel, z square
जेड स्क्वायर कैंसिल, देन व्हाट लेफ्ट, -2x इधर और उधर -6x, तो -6 इधर ले लो तो प्लस के 6 एंड -2 तो +4x। सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, एक साइड ले रहा हूं, ठीक है। अब ये है -4y, यहां भी -4y, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम साइन आकर डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाएगा, और -6z है और -2z है, ओके। -6 है और ये +2z इधर, तो -4z इज इक्वल, कांस्टेंट कुछ नहीं बचा, 0। अंडरस्टैंड, क्लियर। ये दोबारा देख लो, -6 इधर आकर +6 हो गया, +6 -2 +4, ठीक है। ये -6z है, उधर -2z है, तो इधर +2z हो गया, -6 +2 -4z, एंड -4y इधर आकर +4y, 0 हो गया, डन। अदर कांस्टेंट कैंसिल हो गया सारे, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर सब कैंसिल। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन इक्वेशन। सो required set of points, required set of points इक्वेशन, यानी लोकस बनाया है उसकी इक्वेशन क्या बन गई, वो एक लाइन बन गई, क्या बन गया, 4 कॉमन ले लिया तो x - z इज इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड करके, ये आपका आंसर हो गया, डन। दिस इक्वेशन, ओके, क्लियर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, और उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, और उन फ्रेंड्स को भेजो जो आपके क्लासमेट हैं या आपके कोई भी रिलेटिव हैं, कोई भी क्लास में पढ़ते हो, डायरेक्ट 11, 12 और 10th, तो उनको वीडियो भेजो, क्योंकि मैं इसमें वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में दूसरी क्लासेस के भी लिंक को भेज रहा हूं। 10th का, 11th का, 12th का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें पूरी क्लास का फुल सिलेबस, जो भी एक्सरसाइज चाहते हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, एवरी क्वेश्चन, एवरी कंसेप्ट, एवरी फॉर्मूला, प्रूफ, व्हाई, व्हाट, हाउ, कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, कोई भी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ अच्छी तरह से। तो उनको गाइड करो कि वो फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो पहले सब्सक्राइब द चैनल, देन वीडियो का लिंक खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, उन्हें ये गाइड कर देना, ठीक है, कि पहले सब्सक्राइब करो फिर आपको वो लिंक खुल जाएगा, ठीक है। और फिर अपने फ्रेंड को भी भेजो, उनको भी सेम गाइड करो, और प्लीज वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट लिखें। थैंक यू।